Welcome students to lecture number 7 of chemical kinetics. Hope you might have gone through the lecture number 6. So today in this lecture we are going to discuss about activation energy, threshold energy, effect of temperature, etc. So we first begin with concept of activation energy. Concept of activation energy. According to collision theory, which we will discuss later, a chemical reaction occurs only when the reacting molecules collide. जब तक आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड नहीं करेंगे तब तक आपकी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, अगर हम हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन करवा रहे हैं टू गिव यू 2HI, देन दीज reacting molecules, that is hydrogen and iodine, they must collide with each other, and then and only then reaction can occur. Also, all the collisions, they do not carry out the reaction. All the collision do not convert into product. It has been found that a collision must possess a certain minimum amount of energy in order to be converted into product. अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, इधर हम लें प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यू कैन कॉल इट एज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और द रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और इधर हम लें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स. तो हमारी इधर आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, मान लीजिए ये हाइड्रोजन और आयोडीन की पोटेंशियल एनर्जी है एवरेज. सो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट कोलिजन थ्योरी, ये जो एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी विच मस्ट बी अटेन्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विद विच द मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए रिएक्शन. तो आपके रिएक्टेंट की एनर्जी जब तक यहां तक नहीं पहुंचेगी तो ये चाहे कितनी बार मर्जी कोलाइड करें, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द प्रोडक्ट. एंड ऑर्डिनरली क्या होता है, हमारे जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी होती है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, रूम टेम्परेचर कह लीजिए, नॉर्मल कंडीशंस पे, average energy of these reactant molecules is less than the threshold energy. So these molecules must absorb energy either as heat or in the form of light so as to raise their energy up to the threshold energy. तो ये energy absorb करेंगे and they will go up to the threshold energy. And when they will be absorbing the threshold energy, here they will be forming a loose, highly unstable species in which the bond between reactant molecules will get loosened and those between the product molecules will start forming, and a highly unstable species will be formed which is called activated complex. This is your activated complex, or it is also called transition state, or it is also called transition state. This activated complex is quite unstable and immediately break up into the product. So these will be then dissociating to give you the product. ये आपको product देंगे. So this amount of energy, that is the difference between the average energy of the reactant molecules and the threshold energy, दिस इज कॉल्ड योर एक्टिवेशन एनर्जी. इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. तो हमने दो चीजें डिस्कस की, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी और दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है?
थ्रेशोल्ड एनर्जी इज so this threshold energy is defined as minimum energy which colliding reactant molecules must possess in order to bring about the reaction. In order to bring about the reaction. So this is the threshold energy. We generally denote it by ET. This reaction को, इस energy को हम denote करते हैं generally ET से. And what is the activation energy? The activation energy is minimum energy absorbed by reactant molecules in order to have their energy equal to threshold energy. Threshold energy. Threshold energy. So this is your activation energy. तो अगर हम बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी हमारी? जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज डिनोटेड बाय EA एंड इट विल बी इक्वल टू ET थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस E रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स की जो एवरेज एनर्जी है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी में से अगर माइनस कर देंगे देन यू विल बी गेटिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. अब हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है. जब हमारा ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टूटता है प्रोडक्ट में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नेचर पे डिपेंड करती है. मैंने यहाँ पे ये ग्राफ जो ड्रॉ किया है वो ये मान के किया है दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी दिस इज योर in fact the enthalpy of reaction. This is your enthalpy of reaction and this reaction is exothermic because the reactant energy of the product is less than that of reactant. So in the net there will be a release of energy. So this reaction will be a exothermic reaction. So this graph represents the reaction of a exothermic reaction. If this reaction is endothermic then your average energy of these product molecule will be lying above the average energy of the reactants and that will be the reaction profile for your endothermic reaction. So this is about the activation energy, activated complex or transition state, threshold energy. Now let us discuss effect of temperature, effect of temperature on rate of reaction, on rate of reaction. It has been found that for most of the reaction, rate of a reaction increases by twofold, that is doubled or more for every 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर. अगर हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर
10 डिग्री से बढ़ा दें तो आपकी रिएक्शन का रेट या तो डबल हो जाएगा या डबल से भी ज़्यादा हो जाता है. इनफैक्ट इट इज समथिंग बिटवीन 2 and 3. So temperature, from this statement we can say that temperature has a remarkable effect on the rate of reaction. Now, why the rate of reaction increases to such a large extent? We can explain it in two ways, that is qualitative explanation and quantitative. First we will be discussing qualitative explanation. Qualitative explanation में it was thought that the rate of reaction increases because of increase in number of collisions per unit time per unit volume. ये माना जाता था, ये सोचा गया कि हमारी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है जेड को हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी में हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे? नंबर ऑफ कोलिजन्स, दैट इज बाइनरी कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम, दैट इज पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, उसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा गया. तो ये सोचा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को माना गया कि ये रिस्पॉन्सिबल है रेट ऑफ रिएक्शन की चेंज के लिए. But it was found that collision frequency is proportional to square root of temperature. अगर हम अब देखें कि how much the collision frequency will change when temperature is changed by 10 degree. So I am writing Z 310 Kelvin पे, it is proportional to square root of 310. Z 300 Kelvin पे it will be proportional to 300. If we divide these two relations, then Z 310 divided by Z 300, that will be equal to square root of 310 by 300. अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.06 आती है. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी सिर्फ 0.06 फैक्टर से बढ़ेगी, जबकि रेट हमारा क्या हो गया? डबल. इसका मतलब योर कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सच ए बिग राइज इन द रेट ऑफ रिएक्शन. सो नाउ then it was thought that because the reaction is taking place due to collision and those collisions must be with a certain minimum amount of energy, तो ये देखा गया कि हो सकता है कि ऐसे collisions की संख्या बढ़े जिनकी एनर्जी हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो. अब इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना तो संभव नहीं है, तो आपको 11th में एक बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज पढ़ाया गया था, उसी को हम एनर्जीज के लिए भी लगा सकते हैं. तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, वहाँ पे हमने क्या ग्राफ प्लॉट किया था? वहाँ हमने ग्राफ प्लॉट किया था बिटवीन वेलोसिटी एंड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डेल्टा n बाई n, और इधर हमने ली थी वेलोसिटीज. हम इधर ले सकते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जीज. तो अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करें एट टेम्परेचर T, सो दिस ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. ये आपने वहां 11th में भी पढ़ा है. दिस ग्राफ इज एट T केल्विन. वहीं पे आपको पढ़ाया गया था कि जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं देन दिस कर्व गेट फ्लैटेंड टुवर्ड्स द राइट, मतलब दिस कर्व गेट फ्लैटेंड, दिस पीक कम्स डाउन. तो हमारा T प्लस 10 डिग्री केल्विन पे अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ये आ गया ग्राफ. ये मान लीजिए दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन टू अक्कर. देन अर्लियर
ओनली दिस मच फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस कर्व के अंडर एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन. This is at 10 T plus 10 Kelvin. Now when temperature is raised, this much area has been increased. और जब आप कैलकुलेट करेंगे टोटल कि इस एरिया के मुकाबले में ये टोटल एरिया का रेशो क्या है, then this ratio will found to be approximately 2 times or more than 2 times. So this energy was required to occur the reaction और टू कैरी आउट द रिएक्शन. तो ये एनर्जी से पोजेस करने वाले मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी इसके बराबर है या इससे ज़्यादा है, सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स आपकी रिएक्शन कर सकते थे. तो क्योंकि उनका फ्रैक्शन डबल हो गया तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया. यहाँ पे ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल पोजेसिंग ए पर्टिकुलर रिएक्शन एनर्जी दैट इज डेल्टा एन एंड दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. So this is the qualitative explanation. तो qualitatively we can say the reaction rate increases by 2 to 3 fold because of the increase in the number of particles or increase in the fraction of number of particles possessing threshold energy. That was the responsible. The second explanation was given by Arrhenius, and that is quantitative explanation which will give you exactly how much the rate of a reaction will increase if we increase the temperature by 10 Kelvin quantitatively. तो ये अर्हीनियस ने सबसे पहले बेसिकली तो ये इफेक्ट जो है वेंटॉफ ने दिया था, लेकिन इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस और इसकी सारी इलेबोरेशन अर्हीनियस ने की थी बाद में. तो ये अर्हीनियस ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट को क्वांटिटेटिवली दिया एंड ही गेव ए इक्वेशन k इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी. ही गेव दिस रिलेशन वेयर व्हाट इज k? k is your rate constant. K is your rate constant. A is called pre-exponential factor. Pre-exponential factor or frequency factor, or it is called frequency factor. EA is activation energy. EA is activation energy. T is temperature at which the reaction is carried out, and R is of course universal gas constant. Universal gas constant. यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये जो ई ए अपॉन आर टी, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है, दिस गिव्स यू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, fraction of molecules possessing threshold energy. This give you the fraction of molecule possessing the threshold energy. So this is the Arrhenius equation. Now to study the effect of temperature on the rate of reaction, I am taking it as equation number 1. To simplify it, take natural log on both sides. Take natural log on both sides. So natural log of k, that will be equal to natural log of a into e की power minus ea upon rt. इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो इट विल बिकम नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी.
log m की पावर n इज n log m, तो इट इज नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस ई ए अपॉन आर टी, और यहां पे नेचुरल लॉग ऑफ e, नेचुरल लॉग ऑफ e इज 1. सो इफ वी कन्वर्ट दिस टू द log बेस 10, तो हमारा कन्वर्जन फैक्टर 2.303 है. 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी. 2.303 से डिवाइड कर देते हैं हम दोनों साइड. log k विल इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1 बाई टी. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. This is your equation number 2. Now if we have to find out how much rate of a reaction will increase with change of temperature, then we will be writing the difference equation. Let K1 and K2 are rate constant of reaction at temperature T1 and T2 respectively. अब अगर हम ये वैल्यूज यहां पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास log K1 विल बी इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन T1. एक ही आ जाएगी इक्वेशन आपके पास. और log K2 बराबर आ जाएगा हमारा log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन T2. से दिस इज इक्वेशन नंबर 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. क्योंकि हमारा टेम्परेचर T2 ज़्यादा है. अब हम क्या करें? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4. What we will get on the left hand side? In the left hand side we will get log K2 minus log K1. That will be equal to, जब इसमें से ये घटाएंगे तो log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन T2 ये था, माइनस log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1 बाई T1 ये आ गया. अब इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो log A से log A कट जाएगा. जब इसको खोलेंगे तो माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा, ये आपकी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये अपॉन 2.303 r, इसको कॉमन ले लेते हम तो ये आ जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. log m माइनस n किसके बराबर हो जाता है? log m बाई n, log K2 बाई K1. इसको सिंप्लीफाई कर दें आगे. ई ए अपॉन 2.303 r T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2. दिस इज योर log K2 बाई K1. सो दिस इक्वेशन नंबर 5 will give you quantitative effect on the rate constant of a reaction of temperature. आपको दोनों टेम्परेचर पता हो, एक्टिवेशन एनर्जी पता हो, देन यू कैन कंपेयर द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर. नाउ टू चेक द वैलिडिटी of Arrhenius equation, let us rewrite the equation.
After simplification, we have written log K is equal to log A minus EA upon 2.303 R into 1 by T into 1 by T. Now if we compare this equation with the equation of a straight line, then you observe that it represents an equation of a straight line. Thus to check the validity, if we plot a graph between 1 by T and log of K, then it should be a straight line with intercept equal to log A and slope is equal to minus EA upon 2.303 R. तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन 1 बाई टी एंड लॉग के, तो हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी, स्लोप उसका माइनस ई ए अपॉन 2.303 आएगा. सो बाई मेजरिंग द स्लोप वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एंड बाई कैलकुलेटिंग द इंटरसेप्ट we can calculate the value of frequency factor or the pre-exponential factor in Arrhenius equation. This is how the rate of reaction is affected by temperature. So now the next factor which affect the rate of reaction is catalyst. Effect of catalyst on rate of reaction. Effect of catalyst on rate of reaction. Catalyst, as you have been taught earlier also in the previous class, a catalyst is a substance which increases the rate of a reaction. Earlier हम कैटलिस्ट किसी भी ऐसे सब्सटेंस को बोलते थे जो किसी रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता था. बट नाउ इट इज वी डिफाइन कैटलिस्ट एज दैट सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन. रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, but that doesn't mean that it will not participate in the reaction. We will be discussing that it will participate in the reaction, but it will be regenerated at the end of the reaction without being consumed. और जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करते हैं ऐसे लोग, कैटलिस्ट को आजकल हम इनहिबिटर बोलते हैं. तो कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करता है किसी रेट ऑफ रिएक्शन को, हाउ इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ ए रिएक्शन, दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस दैट, मान लीजिए हमारे पास A प्लस B ये रिएक्टेंट है टू गिव यू द प्रोडक्ट. हम इस रिएक्शन को करवा रहे हैं विदाउट कैटलिस्ट. अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कहा था कि आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि वो कोलाइड नहीं करेंगे. और कोलाइड करने के लिए भी they must have some amount of energy, minimum amount of energy. मान लीजिए हमारे ये कैटलिस्ट की मतलब रिएक्टेंट्स की एवरेज एनर्जी है AB. दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू अक्कर. हमारे रिएक्टेंट पहले यहां जाएंगे एंड देन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट. यहां हमारा प्रोडक्ट बनेगा. This is your activation energy without catalyst. EA is activation energy without catalyst. How a catalyst increases the rate? It has been explained on the basis that कि अगर हम इस रिएक्शन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराएं टू गिव यू प्रोडक्ट, देन फर्स्ट योर रिएक्टेंट्स
combine with catalyst and they give a highly unstable species, that is a complex, which then break up to give you the product and regenerate the catalyst, और catalyst आपका regenerate हो जाता है। पहले आपके रिएक्टेंट कंबाइन किए कैटलिस्ट के साथ, एक कॉम्प्लेक्स बना, और इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के लिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट थ्रेशोल्ड एनर्जी इज मच मच लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट विदाउट कैटलिस्ट। तो आपका ये कैटलिस्ट इस रिएक्शन को एक अल्टरनेटिव, एक दूसरा रास्ता दे रहा है, शॉर्टकट विद लोअर अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऊपर ब्लैक में हमने लिखा है विदाउट कैटलिस्ट, और विद कैटलिस्ट ये क्या होगा, दे विल बी गोइंग लाइक दिस, द रिएक्शन विल गो लाइक दिस, एंड हेयर योर थ्रेशोल्ड एनर्जी इज दिस मच लेस देन ETC लिखा हुआ है ना, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और अब जो हमारी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, दैट हैज बीन लोअर टू दिस वैल्यू, दिस इज EAC। तो कैटलिस्ट ने एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर दिया विद ए लोअर एनर्जी टू अटेन, और विद ए लोअर थ्रेशोल्ड एनर्जी, सो द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस, and as a result of that your rate of reaction will be increase. So we can say a catalyst increases the rate of reaction by providing a alternative lower energy path for reactant to convert into product. कैटलिस्ट के बारे में हमने 11th में बता रखा है कि कोई भी कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप कर सकता है, कैटेलाइज कर सकता है, बट इट कैन नॉट इनिशिएट ए रिएक्शन। इसका मतलब ये सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कैटेलाइज करेगा। कैटलिस्ट आपकी रिएक्शन के एंड पे रीजनरेट हो जाएगा, कंज्यूम नहीं होगा। फिजिकल स्टेट बदल सकती है। मान लीजिए आपने कैटलिस्ट को एक लंप की फॉर्म में डाला, एक डला डाला उसके अंदर, और हो सकता है लास्ट में रिकवर हो तो पाउडर फॉर्म में हो, बिकॉज इट इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। ये आपकी ना तो फ्री एनर्जी रिएक्शन की बदल सकता है, फ्री एनर्जी चेंज को चेंज नहीं कर सकता आपका कैटलिस्ट, ना ही आपका कैटलिस्ट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है। ये जो आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, दिस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन अनअल्टर्ड वेदर इट इज taking place in presence of catalyst or without catalyst. There neither free energy changes nor your enthalpy of reaction will change. So this is about the effect of catalyst on the rate of reaction. Now we are left with only one thing, that is the collision theory of reaction rate. We will be discussing it that tomorrow along with few numericals. So that will be the last lecture of this chapter. That is the lecture number 8 will be the last lecture of this. So thank you very much. Hello everyone, if you found the content helpful, so kindly share this video with your friends. Also don't forget to like, share and subscribe. Thank you, happy learning.